हमारे जो होस्ट हैं कहाँ गए, ये थैंक यू, आपने बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन दिया मेरे लिए, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे आपने कहा मैं एक्चुअली हैदराबाद जाने वाली थी और ये सबसे पहले दिल्ली आने के लिए मुझे जो भी एक्सक्यूज मिले मैं आना चाहती हूँ क्योंकि ये तो मेरा घर है। जैसे आपने कहा आई वेंट टू स्कूल हियर, कुछ यहाँ पे मैंने 15 साल गुजारे हैं फ्रॉम 1984 ऑनवर्ड्स एंड माई मदर लिव्स हियर, मेरी बहन भी यहाँ पे रहती है। तो जब भी मौका मुझे मिलता है यहाँ पे दिल्ली वालों के साथ इंटरेक्ट करने का बहुत अच्छा लगता है। और मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बंगाल से तो मुझे ये कहा गया है स्पेशली, और मुझे पता है क्योंकि अम्मा की वजह से, सिर्फ अम्मा की वजह से, और जो हमारे रिलेशंस है रगौर खानदान से बहुत प्यार मुझे मिलता है जब भी मैं बंगाल जाती हूँ। और वहाँ पे लोग मुझे बहुत डांटते हैं क्योंकि जब मैं जाती हूँ वो ऑब्वियसली मुझे बंगाली में बात करते हैं, मैं बंगाली कम बोलती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम मैंने दिल्ली में होगी कि मैं स्पीच भी नहीं देना चाहती हूँ। आपके जो सवाल है आप मुझसे पूछिए, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप पक्का मुझे पूछेंगे आपको बंगाली आती है नहीं, और मैं अपनी जो एक लाइन है, मुझे मौका मिला ऋतुपर्णा घोष के साथ काम करने का जो वाज अ लाइफ टाइम सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और मुझे पता नहीं था कि at that point that he was going to pass away so quickly after that, and I was very excited because I had that opportunity to work with him. In my mind, he's one of the best directors in the whole world. My mother worked with him and it was a great thing for me to work with him. But the reason that I'm here for today, fitness and nutrition is something that is very close to my heart. So when they said कि ये product आज launch होने वाला है, which is Noni Gold, that it's this wonderful company that's been in existence अभी I think 15 साल हो चुके हैं for smart and products and services. So I did some research Noni Gold के बारे में भी मैंने research किया है, और जैसे कि हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में it's a very young country, अभी majority लोग under the age of 35. I'm happy to be one of them also, and for a little bit of time. और हम सब बहुत जानते हैं फिटनेस के बारे में, अभी हम सब बहुत सारे जिम्स हैं हिंदुस्तान में, हम सब जिम जाते हैं, हम सब बहुत ही डाइट कॉन्शियस। When you have more things like this in the market that are natural, and there's a huge debate between allopathy and homeopathy and Ayurveda, but I believe that things like Noni have been called the aspirin of the ancient, and they've been used for thousands of years. So I think that it's wonderful that people are, it's a matter of great honor that you choose me to be here to help you launch this product today. And for me the most exciting thing is I think to interact with all of you. So जैसे मैंने कहा मुझे speeches नहीं देने, तो I feel it's better कि अगर आपके पास कोई सवाल है आप मुझसे पूछिए, and I will be happy to answer them. Thank you. What do you do to keep yourself fit? You are very fit. Thank you. I have to say कि सबसे पहले थोड़ा genetics इसमें होगा, because मेरी माँ मुझे डांटेगी क्योंकि मैं अभी आपको ह्यूमर बताऊंगी, लेकिन आप उनसे नहीं कहेंगे कि मैंने आपको बताया। This year she will be 70 years old, and you know she really can't tell. She और उस ज़माने में लोग जिम नहीं जाते थे, और मैंने उनकी इवनिंग इन पेरिस देखी हाल ही में, उस ज़माने में लोग जिम नहीं जाते थे और फिर she had abdominal muscles. आपने पता नहीं वो सॉन्ग देखा है, My Name is Suzy. It's been, I know कि actually 10 साल पहले जब मैं मुंबई गई थी, my mother was very worried कि आप अकेले जा रहे हो मुंबई, वहाँ पे it's, you know, in Delhi at that time she was more concerned actually कि अकेले रहना शायद सही नहीं होगा अकेले दिल्ली में, लेकिन मुंबई बहुत ही safe है. Now I think that's, of course, when it comes to the safety of women, it's a big problem today across the country. But I think that in certain areas in Delhi, Mumbai, Calcutta, women are coming out in numbers, and they have found a voice, as we have seen in the past couple of years, and they use that voice, and we encourage them to use that voice all the time. So, as I said, it's not always about the numbers; it's more quality than quantity. So I'm sure that the quality here is very good. Family. So already you had everything in your life. ऐसे लग रहा है कि आप मुझे डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हो। तो मैम फिर भी ये मोटिवेशन कहाँ से आते हैं, मतलब फिर भी एक्सेल करना खुद को, आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है? बहुत अच्छा सवाल है आपका एक्चुअली। लोग अब्बा से पूछते थे कि आप क्या करते हैं, और वो हमेशा कहते थे मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं नवाब हूँ। तो लोग पूछते लेकिन आप दिन भर 9 से लेकर 5 बजे तक करते क्या है? ये सब कि आप समझते नहीं, मैं नवाब हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ।
तो आई थिंक कि अभी थोड़ा कल्चर बदल गया है। वो एक ऑब्वियसली ही वाज जोकिंग अ लिटिल बिट, और वो क्रिकेट खेलते थे। जब मैं पैदा हुई थी तो उस वक्त वो रिटायर हो चुके थे, बिकॉज एज अ स्पोर्ट्समैन ही रिटायर अर्ली, और वो जर्नलिस्ट थे। ही वुड बी एन एडिटर ऑफ स्पोर्ट्स वर्ल्ड, वो मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखते थे। सो आई ग्रू अप, ये तो इत्तेफाक की बात है कि मेरी फैमिली में पैदा हुई थी, और आप इस बात पर मेरे लिए ताली मार रहे थे, जो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं था। इट्स अ मैटर ऑफ एक्सीडेंट एंड आई एम वेरी लकी, ये मेरी खुशनसीबी है। लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि लोग इतना प्यार करते हैं अम्मा और अब्बा दोनों से। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो दोनों मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये दो शख्स जिससे मतलब पूरी दुनिया उनको प्यार करते हैं, तो मेरी खुशनसीबी है। और जहाँ तक एम्बिशन की बात है, और मैं आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन इन द फैमिली, एक फैमिली है, सुपर अचीवर्स हैं, पर आई एम द ओनली पर्सन इन द फैमिली विद मास्टर्स डिग्री, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक एवरीवन हैज अ स्ट्रेंथ, अपना जो स्ट्रेंथ है फैमिली में। मेरी जो बहन है, बहुत लोग जानते भी नहीं है कि एक बहन है भाई और मेरे बीच में, लेकिन वो बहुत ही शाय है, लेकिन उनका स्ट्रेंथ ये है कि वो ज्वेलरी डिजाइनर है, वो करती है, बहुत अच्छा करती है। सो एवरीवन हैज अ स्ट्रेंथ, और मुझे अपने जैसे सब कहते हैं कि यू वांट टू मेक योर ओन वे इन द वर्ल्ड, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी जो एंट्री थी फिल्म्स में, छोटी सी दिवाली फिल्म के साथ थी, और ऐसा नहीं था कि यश चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया, मैं वो चाहती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने आप करना था। और जहाँ तक मैं आज तक पहुँची, आप सब जानते हैं कि भाई के साथ मैंने काम नहीं किया है, अम्मा के साथ भी काम नहीं किया है, लेकिन जो कुछ मैंने किया है आई फील कि मैंने अपने हिसाब से किया है। आई फील कि मैं पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पे खड़ी हो रहा, मुझे वोट दीजिए। पर आई थिंक कि आप सब वही दोस्त हैं, जो फैमिली है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो आई थिंक जो अगेन मेरी खुशनसीबी है कि मुझे सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ा, और मैं करना चाहती भी नहीं। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है एक हद तक, और वो पैसे खर्च करना जिन चीज़ों पे आपसे मतलब जिनसे आपको खुशी मिलती है, उसके लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप अभी महसूस कर रही हैं हमारे बीच में आकर, क्या इतना अच्छा कभी पहले लगा? ये तो आप कपिल से सीखी है शायद। और दूसरा सवाल, आप दोबारा हमारे बीच में कब आ रही हैं? जब आप बुलाएंगे, आप मुझे बुलाइए, मैं दोबारा जरूर आऊंगी। ऑब्वियसली मैं आपसे अकेले में मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, जो जिसे एक एटमॉस्फेयर होता है हर कंपनी में, लोगों को एक फ्रीडम मिलती है सवाल पूछने का या एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का। एक कुछ कंपनीज में एक हायरार्की होती है, और मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स में जा चुकी हूँ, जहाँ पे जब मैं पूछती हूँ कि कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कोई हाथ भी ऊपर नहीं डालते हैं, कोई पूछते नहीं है, सब शांत बैठते हैं, ऐसे लगता है कि डर रहे हैं, या कुछ चुने लोग पूछते हैं, उनको माइक मिलता है। तो